Hello and Assalamu alaikum. As you know, this February month is the month of awareness for neurodiversity. And me and Amina, as promised, are together here. But before starting our Q&A session with Amina, I want to tell you all, this is our message for February. Please learn to differentiate between sympathy and empathy. The doctor will emphasize more on this one, but let me start with the introduction of the doctor first. हमारे साथ हैं आमिना करीमी। जी आमिना, कहाँ काम करती हैं आप और क्या डिग्रीज हैं आपके पास related to telling the people that what they should learn if they want to be a child psychologist? First of all, Assalamu alaikum, and thank you for having this conversation with me today. Thank you for giving me this platform, providing me this platform जिसपे मैं अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा mothers को, parents को पहुँचा सकूँ regarding neurodiversity and regarding children with special needs. I have a bachelor's degree in psychology. I have done diploma in early childhood development and education. By profession, I'm a behavior therapist at Majoris Inclusive Center. I am also head of child and adolescents developmental psychology at Team Neurodiversity, which is a Facebook group to promote and to spread awareness regarding neurodiversity. Uske saath saath, I'm a mother. I'm a single parent. I am a homemaker and everything a woman should be. And Okay. yeah, that's much what I have. Your introduction is so inspirational, I must say. So coming to the questions, but before starting the question, the first thing I want my audience to understand that there were some technical issues, and because of that we couldn't go live. So post your questions under the video, and sincerely Amna will be replying to all those questions whenever she finds at her earliest, I would say. Okay, so let's begin with the first question. Is autism, ADHD, or any disorder of that sort is reversible? Amna, मैं इस क्वेश्चन को उर्दू में भी एक्सप्लेन करूंगी कि ऑटिज्म और कोई भी डिसऑर्डर जैसे एपिलेप्सी, ADHD या इससे रिलेटेड कोई भी ब्रेन का कोई भी इशू, क्या ये उल्टा सकते हैं या ये वापस आ सकता है, समथिंग लाइक दैट, टू मेक इट मोर सिंपल? जी आमिना। Okay. See, when we are talking about neurodiversity, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जब ऑटिज्म के ऊपर तो लोग यही पूछते हैं कि इसका कोई इलाज, कोई क्योर या ADHD का कोई इलाज है कि नहीं है। तो इस चीज़ को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि इलाज अमराज का होता है, बीमारियों का होता है, डिजीजेस का होता है। दिस इज नॉट अ डिजीज, ठीक है? दिस इज अ कंडीशन, अ मेंटल कंडीशन। दिस इज न्यूरोडाइवर्सिटी वर्ड ही है कि एक स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम के एक एंड पे वो लोग हैं जिनको हम नॉर्मल कहते हैं, एक एंड पे वो लोग हैं जिनको हम एबनॉर्मल कहते हैं, जिनको हम जिनके लिए हम ऑटिज्म और ADHD का वर्ड डिफाइन कर रहे थे। तो इट इज अ स्पेक्ट्रम एंड ट्रस्ट मी हिरा, कहीं ना कहीं हम सब भी उस स्पेक्ट्रम पे किसी जगह पे फॉल कर रहे हैं। हम भी 100% नॉर्मल की कैटेगरी में तो फिर भी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। I second that. So I started studying this subject, the more and more I went into it, I realized कि ऐसा ही है। और इसको बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसको एक ब्रेन कंडीशन समझा जाए। दिस इज द थिंग वी आर वर्किंग हियर फॉर। इसको एक ब्रेन कंडीशन समझा जाए। अगर कोई बच्चा सोफे के ऊपर जंप कर रहा है तो प्लीज उसको डांटे मत। उसको शौक नहीं है कि वो सोफे पे जंप करे। देयर इज सम स्टिमुलेशन इन हिज ब्रेन गोइंग ऑन दैट इज फोर्सिंग हिम टू डू दैट। प्लीज उसको अननेसेसरी डिसिप्लिन और ये सब में मत घुसाएं। दिस इज माय रिक्वेस्ट। ये बिहेवियर ट्रेनिंग है, ये टाइम के साथ आएगी। प्लीज, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी आमिना। Bilkul. Now coming back to the question, if it's reversible or not, yes, it is a condition which can be managed, which can be, tactfully handled. Some behaviors जो कि inappropriate होते हैं, उन behaviors को eliminate करके new behaviors introduce करवा के हम autism और ADHD वाले बच्चों को एक उस level पे ला सकते हैं that is more socially acceptable, yes. But about reversible, being it reversible, but about the cure of it, then no, ये चीज क्योर नहीं होती क्योंकि डिजीज नहीं है, रिवर्सिबल नहीं होती बिकॉज अल्लाह ताला ने एक तरह से ऐसे ही बनाया है उस इंसान को, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज सून एज पॉसिबल।
अमीना, आपके क्वेश्चन से, आपके आंसर से जो मैं समझ रही हूँ वो ये है कि एक्सेप्टेंस इज रियली इंपॉर्टेंट सबसे पहले। दूसरी ट्रू। चीज, अगर मैं सुबह को 9 बजे उठती हूँ, राइट, सिंपल वे वर्ड्स, और मुझे अपने आप को ट्रेन करना है सुबह 6 बजे उठने के लिए, तो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आप यही कहना चाह रही हैं? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। Okay, coming to the next question. When to start getting concerned, which behaviors or at what age we need to be significantly very alert कि अब ये behaviors हमें eliminate करने हैं, क्योंकि एक common जुमला है हमारी society में कि बच्चे तो ऐसे ही behave करते हैं, you know। आप डॉक्टर हो तो आप इस चीज को समझ सकते हो, so please highlight. See, when at what age should we get concerned? तो बीइंग अ मदर, पहले मैं जवाब दूंगी इस बात का। एज अ मदर एक मदरली इंस्टिंक्ट होती है हर माँ की। वो मदरली इंस्टिंक्ट कहीं ना कहीं पिंच कर रही होती है कि शायद मेरा बच्चा जो है स्पेक्ट्रम पे है, शायद कोई इश्यूज आ रहे हैं, शायद कुछ है। That is the point. That is the time you should get a consultation. That is the time you should take your kid to a child psychologist, to a psychologist, to a person who is, specialized in this field. एंड आप मशवरा करें, सिर्फ मशवरा करें। मैं कोई आपसे दम दुरूद दुआ की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ मशवरे की बात कर रही हूँ, एक मदरली इंस्टिंक्ट वाले। दूसरी चीज, अगर हम थोड़ा सा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें, एंड अगर हम ये देखें कि ये माइलस्टोन्स की जो बात करते हैं, सो हर बच्चा जो है एक सर्टेन एज के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर आते ही ये चीज अचीव कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 4 महीने की उम्र में गर्दन टिक जानी चाहिए, 6 महीने की उम्र में कमर सीधी हो जानी चाहिए, बॉडी कंट्रोल इतना होता है। 1 साल की उम्र में वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज फंक्शनल वर्बल कम्युनिकेशन, पानी को मम्मम बोलना, माँ को म बोलना या मामा बोलना, at least one word functional communication. These milestones are actually very important क्योंकि ये predict करते हैं कि आगे जाके कोई issues आ भी सकते हैं कि नहीं। अगर milestones time frame के अंदर अंदर achieve नहीं हो रहे, then you should be concerned, then you should also consult someone. फौरन alert हो जाना चाहिए। one चीज I would like to add here, अक्सर multicultural environment में जो बच्चे होते हैं, फादर की लैंग्वेज कुछ और है, मदर की लैंग्वेज कुछ और है, और दोनों मिलके कोई और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। उस इन्वायरमेंट के अंदर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि बच्चे के ऊपर अफेक्ट करती हैं, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा डिले आता है, एंड माइलस्टोन्स आर नॉट द सेम एज द मेन स्ट्रीम वंस। बट स्टिल हमें फोकस इस बात पे करना है कि कम्युनिकेशन फंक्शनल कितनी है, मतलब कि वो जो वर्ड बोल रहा है हर बार वही लफ्ज यूज करता है उस चीज को डिफाइन करने के लिए कि नहीं। So that is the thing. हाँ हाँ, आई गेट यू। पर्सनली मेरे पास शायद इस चीज का एक्सपीरियंस है, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। एंड आई वुड से कि बच्चे के आई कांटेक्ट को हमेशा देखें। लैंग्वेज बैरियर्स आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स एक जेन्युइन सी चीज है। बच्चा नहीं पिक कर पा रहा, माँ की लैंग्वेज कुछ और है, बाप की लैंग्वेज कुछ और है, जहां वो पढ़ने जा रहा है या नर्सरी में जा रहा है वहां लैंग्वेज कुछ और है। बट आई कांटेक्ट और उसका एक अकेला रहना, प्रेफर करना कि मैं अकेला रहूं, क्योंकि बच्चे जर्नली ग्रुपिंग को एंजॉय करते हैं। व्हाट डू यू से? अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग कि ऑटिस्टिक बच्चे अक्सर जो हैं 2 साल की उम्र तक बहुत अच्छा आई कांटेक्ट कर रहे होते हैं। 2 साल के बाद एकदम से वो चीज जो है रिवर्सल आता है। रिवर्स बैक होना शुरू हो जाती है। सो यस, वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स एंड द मेजर साइन ऑफ ऑटिज्म इसके 2 साल की उम्र तक सब कुछ बिल्कुल सही है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कम्युनिकेट भी कर रहा है बच्चा वर्बली, आई कांटेक्ट भी कर रहा है। बट जैसे ही सेकेंड बर्थडे होती है बच्चे की, उसके बाद से उसके अंदर वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। वो टिपटोज पे चलना शुरू कर देता है, वो जिटर्स शो करना शुरू कर देता है, वो आई कांटेक्ट इतना अच्छा मेंटेन नहीं कर पा रहा होता, एंड उसने जो वर्ड्स सीखे होते हैं वो वर्ड्स वापस से रिवर्स बैक होके वो भूल रहा होता है। सो यस, दैट इज समथिंग वेरी अलार्मिंग फॉर द पेरेंट्स। Yeah, I can very well understand it. I hope everybody around who is listening can understand it that way. Gee, thank you for the comprehensive answers, Amina. Thank you so much. Okay, coming to question number 3. Very important question, because most of the people, some, like when I search online, there are some, there are some certified people on some medications that say ABA is wrong. So why ABA? Why ABA is wrong? First of all, answer Yeah, that. there are some Why people, is it wrong? I have no idea. There I are know, some I know people.
I know the people against ABA, I know the critics and everything. Why ABA? See, I am a behavior therapist myself. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ABA को जो है डिफाइन करके ABA की तारीफें के पुल बांधूंगी. No. Why ABA? मैं साइंटिफिकली इसका आंसर दूंगी. Because ABA is record oriented, because ABA is result oriented. बच्चे का एक एक बिहेवियर रिकॉर्ड हो रहा होता है, पूरे फ्रीक्वेंसी चार्ट्स बन रहे होते हैं. एक दिन में कितनी दफा इसने आई कांटेक्ट किया, एक दिन में कितनी दफा ये उठ के अपने हाथ से पानी का ग्लास इसने उठाया, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही होती है. सो इट इज मोर रिकॉर्ड ओरिएंटेड. सारे सारे ग्राफ्स बन रहे होते हैं इसके अंदर. फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे के इस बिहेवियर की, किस तरह से इस बिहेवियर को एलिमिनेट करना है, किस तरह से इस बिहेवियर को इनहांस करना है, किस तरह से शेप अप करना है. ABA एक ऐसी चीज है जो कि घर पे हर कोई अडॉप्ट कर सकता है. ABA एक ऐसी चीज है जो कि पेरेंट्स अगर थोड़ा बहुत सीख लें, ट्रेनिंग ले ले, तो वो आराम से अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं. एंड समवेयर हम लोग खुद ABA घर पे अपने बच्चों के साथ कर ही रहे होते हैं. तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम्हें मैकडॉनल्ड्स नहीं मिलेगा. तुम्हें ये चाहिए तो तुम ये करो. दिस इज what ABA is all about. Reinforcement. Yes, correct. Exactly. And we are doing it with ourselves as well. हम भी जॉब पे अपने कर रहे होते हैं, हमें वर्क प्लेस में जो reinforcement मिल रहे होते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस पे बोनस मिल रहा है. What is this? This is what ABA is. यही तो है ABA. Recently I attended a course. Sorry to interrupt. Recently I attended a course and I realized how bright and how applicable this thing is. Like recently I did a course of RBT and I was realizing, yeah, all these things are so much a part of my life. I'm implementing them. Only I'm learning it the scientific way. How to maintain records and how to monitor behavior. This is what I'm learning from the course. Right? Okay. Exactly. And this is the language. ABA is a language. ये लैंग्वेज आसानी से हर बच्चा अंडरस्टैंड कर लेता है, चाहे वो स्पेक्ट्रम पे है या नहीं है. The child understands, मैं ये यहाँ रखूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी. So this is how ABA works. And जो critics कहते हैं कि ABA नहीं होना चाहिए, वो इंसान और जानवर में फर्क नहीं करता, because animal training में भी ABA यूज हो रही होती है, reinforcements यूज हो रही होती हैं. So see, बिल्कुल फर्क है इंसान और जानवर में. एनिमल ट्रेनिंग के हार्श मेथड्स होते हैं, लेकिन इंसान को कभी रिस्ट्रिक्ट करके बिठाया नहीं जाता है, जबरदस्ती उसके हाथ पर बांध के नहीं किया जा रहा होता कुछ. नो, उसको सुकून से बिठा के जहां वो बच्चा बैठना चाहता है. मैं तो अपनी थेरेपीज में यही करती हूँ. द चाइल्ड चूजेस द प्लेस, द चाइल्ड चूजेस द टॉयज ही वांट्स टू प्ले विद, एंड देन उसके साथ बैठ के उसकी पसंद की जगह पे, उसके पसंद के एनवायरनमेंट में जाके फिर मैं उसके साथ वो ABA थेरेपीज कर रही होती हूँ. So this is how ABA works. Great. And yes, there have been many malpractices in ABA in Pakistan especially, जो कि गलत है. काफी सारे थेरेपिस्ट गलत स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जिसकी वजह से बदनामी ज्यादा हो रही है ABA की. You know, the way I logically understand it is like आपको इसे एक ascending order में लेके चलना है. Same sort of set of activities को after intervals judge करके move to an advanced activity. ये यहाँ टेक्निकली कुछ थेरेपिस्ट का मुझे फ्लॉज लगते हैं, जिनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती या प्रॉपर स्टडी नहीं होती. वन ऑफ द रीजंस, राइट जी. कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन came from somewhere. It was in my mind that I will always include this question, and some parents did it and I'm really happy. Food-based solutions. जैसे मुझे when I started taking my daughter to the therapy center, the first thing they said to me is कि इसके sugar consumption को बिल्कुल आहिस्ता एकदम नहीं खत्म करना, आहिस्ता करके reduce करें, switch करें brown sugar पर. अगर ये कोई fizzy drinks या कोई ऐसे juices बाहर से लेती है तो please stop it, or it will help you in analyzing how effectively the therapy is working. Because alone therapy cannot do anything if you are bombarding the body with sugars. So highlight please the food part. The food part में देखिए, artificial colors, sugars and saturated fats, these all are bad for your body and bad for the brain as well. When it comes to food-based solutions, so doctors suggest कि protein का intake ज़्यादा हो diet के अंदर, because protein helps the neurotransmitter communicates better. So in neurodiversity, specifically autism and ADHD, neurotransmitters की better communication के लिए protein diet is good. A diet
which is balanced, which has omega-3 and 6 oils, a diet that has more emphasis on fruits and vegetables, more home cooked food, बजाय ये कि जंक फूड हो, मैकडोनल्ड्स, KFC, टेक्सास चिकन, इन सबको अवॉइड करना, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं, उसमें आर्टिफिशियल MSG वगैरह का यूज होता है, दैट इज अगेन बैड फॉर द चाइल्ड्स हाइपर एक्टिविटीज एंड बैड फॉर द चाइल्ड्स ब्रेन्स. सो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इवन बड़ों के लिए भी दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट हेल्दी. So whole grains, healthy, saturated, unsaturated fats, fruits, vegetables, home cooked food. That would be more better for the child. आमना, एक और चीज, जहाँ पे आपने बात की फास्ट फूड की, एक और चीज जो इसके साथ रिलेटिव है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई थी, एंड दैट रियली वर्क, क्योंकि मेरी बेटी ओवरवेट भी थी. द थिंग वाज कि जंक फूड विल नॉट हेल्प इन, will not let her stay active. The activity that we want her to be physically very active during the OT class. And if she is like on the obesity side, or if she is a little healthier, she will not be able to perform well during OT. तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगी? See, again, junk food leads to obesity. And junk food leads to addiction. एक दफा बच्चा खाता है मैकडोनल्ड की फ्रेंच फ्राइज, तो एडिक्शन ऐसी हो जाती है, जो बच्चा खाना नहीं भी खाता है उसको वही चाहिए, बिकॉज इट हैज सर्टेन थिंग्स इन इट, जिससे तो अगेन अब अगर बच्चा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है एंड उसकी OT भी चल रही है, उसकी बिहेवियर थेरेपीज भी चल रही है, ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स, वो बच्चा ना मेंटली उतना ज्यादा फोकस्ड रह पाएगा उस चीज के ऊपर, ना फिजिकली वो चीज परफॉर्म कर पाएगा ड्यू टू द heavy weight and stuff. So this is also a very valid point. Yeah, another thing that I was asked to do was to take her in nature for walk, jogging, whatever, preferably in parks for 30 minutes every day. Why is it important? See, वॉक और जॉग और जंपिंग आपके फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है, आपके जो एक्सपेल आउट द एनर्जी दैट इज बंडल्ड अप इनसाइड द बॉडी, वो एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए इट हेल्प्स. आई एम सॉरी, माय डॉटर इज सिंगिंग इन द बैकग्राउंड, जस्ट इग्नोर हर. It's happening in my background, so I don't mind it. Okay, we are mothers, everyone needs to understand, and everyone totally understands this. Okay, Amna, coming to the next question. Some strategies, home-based strategies, क्या teach करेंगी आप? Quickly, 4-5. Home-based strategies for like, what? Like concentration, gaining concentration. Basic problem gaining concentration है कि बच्चा eye contact दे भी रहा है, नहीं भी दे रहा, फिर भी वो present नहीं है उस चीज पर. Concentration, major question हमेशा is about concentration. Yeah, we are constantly scolding our kids कि ध्यान दो, कैसे कर रहे हो, ध्यान से करो, concentration नहीं होती, attention नहीं होती. Yes, very true. Some basic activities that you guys can do. Find something. Tell your kids to find something white. Tell your kids to find something blue. Find something red. Colors दें उसको. I play this with my kids in my school. Find something, come on, let's find something this, find something this. So find something, पहले colors का, फिर shapes का. Find something square, find something sphere, find something rectangular, find something cubic. तो वो बच्चा जो है, उसकी attention, उसकी concentration, उसका focus सब जाता है उस चीज को ढूंढने में. ठीक है? That is one activity that you can do. Number 2 would be make something. Make something में आप origami लेके बैठ जाए. There are many techniques of origami on internet you can find easily. Origami के साथ बच्चे के साथ बैठ के कुछ बनाए, ship बनाए, plane बनाए, hat बनाए, boat बनाए, anything. And random objects, घर से कूड़ा कचरा जो random objects है, hanger हो गया, टीन का डब्बा हो गया, कोई भी चीज है ना, ऐसे 4-5 random objects जमा करके try to sit with your child and make something out of it. Take his ideas के आप suggest करो मैं क्या बनाऊँ, इससे क्या बन सकता है, इसको ऐसे hang करके ऐसे बनाते हैं, chandelier बन जाएगा. Make something. Board games very important again. Chess खेलना बहुत जरूरी है. अगर बच्चा उस एज में है कि understand कर लेता है chess के game को, उससे concentration आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है. Crossword puzzles, and वो blocks building वाली activity, tower building वाली activity.
डेली डायरी लिखना, पूरे दिन में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, हाउ वाज माय डे, हाउ आई फेल्ट थ्रू आउट द डे, आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट बैड, आई फेल्ट हैप्पी, आई फेल्ट सैड, आई फेल्ट वेरी इमोशनल, वेरी जिटरी. Maintain a daily diary. And the last but not the least, brain yoga. Brain yoga क्या है? हिरा, मैं चाहूंगी आप भी मेरे साथ थोड़ा सा करेंगे. Right hand की pinky and left hand का thumb. Do this. Right hand की pinky, left hand का thumb. Now reverse. Right hand का thumb, left hand की pinky. Now do it fastly. Fast. Even I can do it properly, but this is kind of a brain activity. Reverse karna. Pinky, thumb. Then again, pinky, thumb. Reverse kar karke. These kinds of activities, these are brain activities, and they help you and your kids focus better. Amna, you know what? Thank you so much for the treasure of knowledge. You know, I noted down a lot of points. I'm into this from last 5 years, and I'm attending the sessions. I'm going to so many conversations. I'm attending so many things on the internet. I'm reading, and I'm just digging myself deep into it. But still, I'm learning so much from you. Thank you so much. Coming to another important question, social pressures जो हमारे ऊपर आते हैं because of our kids. How to deal with them? All of a sudden, this question came to my mind. I just want to ask you how to deal with them, how to shut down what kind of social pressures? Can you give me an example? Mostly the thing that I suffered from, I would share my personal experience. Why you want her to sit in the class? Because she needs a special school. This was the, first instances that came to me, that why you are forcing her to sit in this classroom when she belongs to a special classroom. Okay. Acha. See, again, you are a parent, your decision, your kid, your life. And you are basically the advocate of your kid. And वो बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, you know better. You know the child's limitations better than anyone else. You know the child's limitations better than the child's teachers, better than the child's khalas or mamus or puppas or puppies or anyone else. Because it's your child and you're the mother. Okay? If you have taken the decision of picking up a mainstream school for your child, you know better than anyone else. Just focus on that thing. Okay? Yeah, because the ABA was going on and the therapists were constantly motivating me to put her into the school because this is how they're monitoring it. They were like, it will take 1 month, 2 months, or 3 months. Nobody can tell anything in a fixed way. So just keep on focusing and trying, and one day you will see that she's performing at sitting better than other because she's learning it. She's copying and pasting it. One day the whole concept of inclusion revolves around the idea कि mainstream बच्चों के साथ special needs बच्चे, autism के बच्चे, ADHD के बच्चे साथ मिलके, so that they both learn from each other. Mainstream बच्चे क्या learn करते हैं special बच्चे के साथ? वो empathy learn करते हैं. Honestly. They learn how to cooperate with other kids. They learn the how to accept differences. How to accept differences, because this is a very big training for their life. Exactly. सबर करना सीखते हैं बच्चे. किस तरह से wait करना है, किस तरह से सबर करना है. So that is something जो कि usually schools में बच्चे नहीं बच्चों से. Yes, because accepting differences and going about them with patience is the key to success in life. True, बिल्कुल. And the place I'm working, Majoris Inclusive, it is an inclusive schooling system. और यहाँ पर इसी तरह से हम लोग भी लेकर चलते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से लर्न करें. मेन स्ट्रीम बच्चे नॉट सो मेन स्ट्रीम बच्चों से लर्न करें, एंड द किड्स हैविंग न्यूरो डाइवर्सिटी वो मेन स्ट्रीम बच्चों से लर्न करें. दोनों एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट करके एक ही लाइन बना के चले. That is, I think that is ये चीज जो है एक मैजिक डिफाइन करती है. This is how magic works. This is this is the way to go. I'm really impressed. Okay, coming to the last question, and it's related to the pandemic that we are in, all of us are in.
इस पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा थेरेपी पे जाने का प्रॉब्लम चल रहा है। बच्चों की स्कूल्स ही मतलब दे आर नॉट शट डाउन बट दे आर हैविंग ऑनलाइन क्लासेस। तो सोशल इंटरेक्शन जो इन बच्चों ने बड़ी ही मुश्किल से स्टेप बाय स्टेप जाके सीखा है, वो कहीं ना कहीं बैक साइड पे आ रहा है। तो आपको क्या लगता है घर के अंदर रहकर हम इनको सोशली इंटरेक्ट करना कैसे सिखा सकते हैं? मेरे पास तो चलो आई हैव अ सन, तो बहन भाई सोशल इंटरेक्शन फिर इनका कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, बट फिर भी आई एम सीइंग अ बिग गैप ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट वो पेरेंट्स जिनके पास एक ही बच्चा है एंड दे आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, आप उनको क्या बोलोगे कि पेंडेमिक में लिविंग इनसाइड देयर हाउसेस सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करने का, कम्युनिकेशन को सस्टेन के कम्युनिकेशन सस्टेन रहे बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ थेरेपी एंड नॉट गोइंग टू स्कूल, वो कम्युनिकेशन जो इतनी मुश्किल से बिल्डअप हुआ है वो ड्रॉप ना हो जाए, उसके लिए कुछ मैं चाहती हूँ आप प्लीज ऐड कीजिए। सी सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो पूरी पैंडेमिक सिचुएशन है, सिर्फ बच्चों के सोशल इंटरेक्शन को हम एक साइड पे रखें, ओवरऑल पूरे एक फैमिली इन्वायरमेंट को किस किस तरह से अफेक्ट किया। देयर आर मेनी पीपल हु आर गोइंग जॉबलेस, देयर आर मेनी पीपल who are cutting down on their expenses just because they can't afford that much. So एक फैमिली यूनिट को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, पूरे हमारे माइक्रो से लेके मैक्रो इकोनॉमी, पूरी दुनिया की मैक्रो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। नाउ कमिंग टू सोशल इंटरेक्शन, यस आई वुड एग्री कि बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन इफेक्ट हुई है बच्चों की, लेकिन अगेन देयर आर मेनी स्ट्रेटजीज दैट यू कैन डू एट होम। आप 100% तो सोशल इंटरेक्शन नहीं करवा सकते, बट एटलीस्ट 20 to 30% भी अगर कर रहा है in this situation, in the lockdown situation, so that is more than enough, that is okay. ठीक है। my own daughter, she hasn't started school yet. जब ये पेंडेमिक आया उसके बाद और डिले हो गया स्कूल, तो अब मैंने जाके उसको स्कूल में एडमिशन करवाया है। फ्रॉम नेक्स्ट वीक शी विल स्टार्ट हर स्कूल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उसका सोशल इंटरेक्शन घर पे बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज घर पे और कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ एक बड़ी। उसके सोशल इंटरेक्शन के लिए उसके मेरे जो कजन्स हैं उनके बच्चों को ला के मैंने घर में डे स्पेंड करवाया। somehow प्ले डेट्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट सोशल इंटरेक्शन है। एंड शी लव्स टू इंटरेक्ट विद अदर किड्स, शी लव्स टू बी विद अदर किड्स। सो somehow मोहल्ले के बच्चे, सड़क पे ले जाके साइकिल चलाना, एटलीस्ट इतना तो मैं कर सकती हूँ। तो जिस हद तक मैं कर सकती थी मैंने किया। एंड अगर घर में सिबलिंग्स हैं तो सिबलिंग के साथ, जैसा आपने बताया आपके घर का एनवायरनमेंट है, दोनों बहन भाई आपस में मिलकर खेल सकते हैं, तो एटलीस्ट जितना सोशल इंटरेक्शन, जितना एक्सपोजर मिल रहा है उतना काफी है। ट्राई टू प्लान प्ले डेट्स विद योर नेबर्स, प्लान प्ले डेट्स विद योर कजन्स, अगर उनके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो। एंड that is a very important thing. कोरोना पॉजिटिव ना हो, घर में टेस्ट करवा के। एंड सोशल मीडिया, अगेन सोशल मीडिया के थ्रू मैंने जैसे इनोवेटिव माइंड्स के पेज पे देखा था कि कुछ बच्चे आपस में सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर रहे थे, दे वर हैविंग अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। those kind of interaction are again a way out. That is also a very good idea. Thank you, Amina, so much. Thank you for the wonderful, I would say, conversation. Thank you for adding a lot of things to my knowledge. I have penned them down and obviously they will be a part of my diary. Thank you so much. Talking to you was really nice. Thank you for having me here, and thank you for providing me again this platform. I hope कि आगे जाके भी अगर मेरी तरफ से कोई help हो सके इस platform के लिए, I'm always here for you guys. So thank you for honoring me. Thank you so much everyone for listening to us. कोई भी क्वेश्चन आपका होगा, आमना उसको एट द अर्लीस्ट रिप्लाई करेंगी, बिकॉज आई मेंशन एट द स्टार्ट कि हम लोग बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसको लाइव नहीं कर पाए, एंड सो मेनी पीपल वर वेटिंग फॉर अस लाइव, वी आर सो सॉरी फॉर दैट, बट इंशाल्लाह ऑल योर क्वेश्चंस विल बी entertained, but please no inboxing, only under the video, okay? Because messages go to junk and then it is really unethical that people are thinking that we are not replying, okay? Please under the video comment your questions, we will be waiting. Amna will inshallah reply. Thank you so much everyone. Thank you. Allah Hafiz.